So guys, till now we discussed the definition of ethics, and I gave you the basic idea of morality, and we discussed some examples of comparison between ethics and morality. Now guys, we will go in a standardized definition of morality. Okay, so what is morality, and then we'll compare ethics with the morality at a higher level. So guys, what is morality? So if anyone asks you the question on morality, then I told you, like in every ethics paper or any other paper, your optionals, etc. Wherever there are thinkers, then you need to be writing the definitions, the core definitions given by thinkers, philosophers, etc. So for morality also guys, there is a standardized definition of morality. There will be different definitions of morality for different thinkers. Okay, this is the Aristotle's definition of morality. So you can quote that or write that definition. So what is definition of morality? I will read that, and then I will explain each and every part of this definition. So guys, morality is standard of right and wise conduct whose authority in practical thought is determined by reason rather than custom. So this is the standard definition. So just now we discussed the definition of ethics also. And in the definition of ethics, okay, that is, it is the branch of philosophy which tells us what is good and bad ends to pursue in life, and it is therefore a practical discipline, okay, whose primary aim is to guide what actions we ought to do and what kind of life we ought to live in our life, what actions we need to perform. So this definition has some keywords that I explained you. Same way guys, morality definition, why you need to write this same definition? Because this morality's definition also has some keywords. So morality is standard. Okay. So morality is standard of what? Okay. So morality is the standard of right and wise conduct. So what is standard? So you must have studied about standards like MKS system, CGS system in your physics, chemistry, etc. So gram, kilogram, centimeter, meter, all these are standards with which we measure something. So morality is also a standard. Standard to measure what? Okay, standard to measure the right and wrong. Okay, right or wise conduct. So कोई भी एक्शन कितनी मोरल है या कोई भी एक्शन कितनी ज्यादा इमोरल है, वो जो मोरालिटी और इमोरालिटी का जो मेजर है, okay, उसका एक स्टैंडर्ड है मोरालिटी. So morality is the standard of right and wise conduct whose authority in practical thought. So this word practical thought is also very important. So whose authority in practical thought. So now what do you mean by practical thought? So practical thought guys, I already explained you in ethics definition that ethics is not only theoretical subject, but it can be practically applied in day-to-day life. So same way guys, morality is also concept that is applicable practically in our day-to-day life. So morality guys as a subject involves or what we call can be taught in the schools, can be developed by the families into their kids. Okay, morality can be learned by an individual and he can cause his own moral development. So morality is not just a theoretical subject, but it is a practical thing. Okay, it is a practically achievable thing. We can develop morality, we can achieve morality, we can increase our morality. Okay, we can learn our morality, and that's why in definition of morality, okay, morality is standard of right and wise conduct whose authority in practical thought, means morality can be learned practically, okay, can be implemented practically. And once you develop morality, you can understand in your day-to-day life practically कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा मोरल है और कोई भी चीज कितनी ज्यादा इमोरल है और कौन सी चीज आई शुड डू और थिंग्स विच आई शुडंट डू. सो मोरालिटी इज अ प्रैक्टिकल थॉट. फिर आगे डेफिनेशन क्या बोल रही है? प्रैक्टिकल थॉट इज डिटरमाइन. सो इट्स अथॉरिटी इन प्रैक्टिकल थॉट इज डिटरमाइंड बाय रीजन रादर देन custom. Okay, so authority in practical thought is determined by reason rather than custom. So what do you mean by is authority in practical thought is determined by reason rather than custom? So I told you, okay, just now that ethics comes from an outside source. Okay, ethics is dictated by an external agent, while morality comes from inside. Morality is your inner voice. Morality is a voice of conscience. Morality comes from your Sat Sat Viveka Buddhi. Morality bonds
from your internal reasoning. So आप non-veg क्यों नहीं खाते? Why you don't eat non-veg? Because religion tells you to do so, caste tells you to do so, family doesn't allow, then and you do that. You are following ethics. Morality comes from within. So I don't eat non-veg because I feel animal have rights. It is wrong thing to do. Okay, I should respect others' lives. Pain is a inherently bad value, bad thing, or to cause pain to others is a bad moral value. So when you know that and you do some action because of your internal reasoning, your inner voice, your inner conscience tells you to do so, that's morality. So authority of morality, guys, in practical thought is determined by reason, not by custom, rather than custom. If you do something in your life which is determined by a custom, dictated by a custom, okay, then you are being ethical. But in morality, if you do something by inner voice, inner conscience, antaratma ki आवाज, what we call Sat Vivek Buddhi is telling you, your moral reasoning, Sat Vivek Buddhi is telling you to do something, then you are being moral, not just ethical. So your authority in practical thought is determined by reason rather than custom. Okay. Now, in this definition, so I also discussed with you an example of a signal, following a signal. So you follow signal because there is a law, there is a policeman, there is a CCTV camera, there will be challan, penalty. For any outside obligation, outside compulsion, okay, or outside agency tells you, external source tells you, you are just being ethical. But if your inner voice, inner conscience tells you what to do, what not to do, then that's your morality. So morality, I follow signal because as a citizen of a country, it's my duty to follow signal. It's my duty to obey signal. And I will obey the signal because there is a law and there is a social contract that I should follow that law of a nation, law of a country, law of my society. And I understand that that is good law and I should obey that law. So if you do that, that's your moral reasoning. Your अंतरात्मा is telling you. तो आपकी अंतरात्मा का पूरा विकास हो चुका है. Okay, your conscience has been fully developed and that conscience, inner voice dictates everything. So morality is the standard of right and wise conduct whose authority in practical thought is determined by reason rather than custom. अब गाइज ये जो नॉनवेज खाने का एग्जाम्पल था, इसमें आई टोल्ड यू कि यू डोंट ईट नॉनवेज बिकॉज रिलीजन टेल्स यू, कास्ट टेल्स यू, यू आर इथिकल. बट नाउ समवन विल से, और आई गिव यू सम रीजनिंग्स आल्सो, दैट आई डोंट ईट नॉनवेज बिकॉज आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक टेस्ट ऑफ इट, आई कांट डाइजेस्ट इट. ओके, आई हैव सीन animal being killed and it was very nauseating, that blood, watching that blood and everything, and so I don't eat non-veg. तो ये सारे लोग जो है, ओके, इनका रीजनिंग, ये तो भी उनका खुद का रीजनिंग है, आई डोंट लाइक टेस्ट, आई डोंट लाइक स्मेल, आई कांट डाइजेस्ट. ओके, सो ये तो भी खुद का इंटरनल रीजनिंग है. सो गाइज दैट्स व्हाई ये जो वर्ड है इंटरनल रीजनिंग, ओके, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत हिडन आर्ग्यूमेंट या काफी हेवी थॉट इसके पीछे है. तो आपका जो इंटरनल रीजनिंग है गाइज, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स, इंटरनल रीजनिंग्स. एक आता है आपका बायोलॉजिकल रीजन और दूसरा आता है आपका यूनिवर्सल इटर्नल डिवाइन रीजन. ओके, और यहां मोरालिटी की डेफिनेशन में जो रीजन है आपका इज दैट यूनिवर्सल इटर्नल डिवाइन रीजन. सो यूनिवर्सल रीजन, डिवाइन या इटर्नल रीजन होना चाहिए, देन दैट्स ओनली कंसिडर्ड, दैट इज कंसिडर्ड इन मोरालिटी. तो गाइज ये डिवाइन यूनिवर्सल इटर्नल रीजन क्या होता है, दैट आई कांट एक्सप्लेन यू नाउ, इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट दैट आई विल डिस्कस विथ यू इन माय ऑनलाइन क्लासेस. Okay, so on platform of Darshanik IAS app, where I will be taking this ethics classes, there I will discuss this concept in detail. And also in virtue ethics, I told you, in deontology ethics, I told you we will discuss three thinkers: Immanuel Kant, Gandhi, and Bhagavad Gita ethics. So in Immanuel Kant, when we discuss Immanuel Kant, there are two concepts given by him, okay, where we will discuss this one concept, principle of universality, and another concept, categorical imperative.
When we will discuss this concept of principle of universality and categorical imperative, that time we will discuss, okay, that Immanuel Kant talked about these two reasons in detail, that is biological reason and universal reason. So our action should not be guided by biological reason. ये जो आर्ग्यूमेंट है, आई डोंट ईट नॉनवेज बिकॉज आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक टेस्ट ऑफ इट, स्मेल ऑफ इट, ये सारे बायोलॉजिकल रीजन है. एंड मोरालिटी ये बायोलॉजिकल रीजन पे नहीं होती. मोरालिटी शुड बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल इटर्नल डिवाइन रीजन. अब क्यों नहीं? बिकॉज आज आप नॉनवेज इसलिए नहीं खा रहे हो बिकॉज आई कैन डाइजेस्ट इट, कल डाइजेस्ट करने लगोगे तो खाने लगोगे. योर बायोलॉजिकल रीजन इज ऑन वेरी शेकी ग्राउंड. आज नॉनवेज इसलिए नहीं खा रहे हो बिकॉज यू थिंक किलिंग एनिमल इज अ पेनफुल, तो कल अगर हमने नॉन पेनफुल मेथड निकाली जानवरों को मारने की, देन विल यू स्टार्ट ईटिंग. इफ यू डेवलप पेनलेस मेथड टू किल एनिमल्स, you might start eating. Then you don't eat non-veg because of your internal reasoning, I can't digest it, तो कल डाइजेस्ट करने लगोगे तो नॉनवेज खाने लगोगे. सो योर मोरालिटी in a biological reason is based on very shaky ground, and that's why your morality, okay, is not based on shaky grounds. It has to be very solid, it has to be on a solid grounds. It should be based on very firm principles. और इसलिए मोरालिटी में जो रीजनिंग आता है इज नॉट बायोलॉजिकल, इट इज यूनिवर्सल, डिवाइन एंड इटर्नल रीजन. अब ये क्या रीजन होता है दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल इन माय क्लासेस, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल और हिंट ऑफ इट कि डिवाइन रीजन क्या. तो डिवाइन मतलब क्या? डिवाइन मीन्स लाइक गॉडली. तो नॉनवेज नहीं खाना, इसके पीछे आपका रीजनिंग क्या है? व्हाट इज योर रीजनिंग ऑफ नॉट ईटिंग नॉनवेज? तो योर रीजनिंग should be the divine reason, मतलब your reasoning should be like the reasoning of Buddha, Mahavira. Your reasoning should be like reasoning of Gandhi. गांधी तो गाय का दूध भी नहीं पीते थे because he said it is violence, वो बछड़े के लिए बनाए. तो why Mahavira in Jainism when talked about non-violence or don't eat non-veg etc. what was Mahavira's reasoning? और उनका जो रीजनिंग हुआ वो आपके अंदर होना चाहिए. तो क्या आपको लगता है महावीरा इसलिए नहीं नॉनवेज खाएंगे क्योंकि ही डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट और कैन डाइजेस्ट एटसेट्रा? नो, महावीरा का जो रीजनिंग है विल बी इटर्नल, यूनिवर्सल, डिवाइन रीजन. ओके, जो भगवानों का रीजन है उसी रीजनिंग से आप कोई चीज करो. दैट इज ओके, आई थिंक एनिमल हैव राइट्स, एवरीवन हैज राइट टू सर्वाइव, एवरीवन हैज राइट टू लिव. ओके, एंड दैट्स व्हाई ओके वी शुड प्रोटेक्ट द एनिमल्स और वी शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर animals or so on. So your reasoning should be like that of a godly reasoning, divine reasoning. Okay, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूनिवर्सल रीजन, डिवाइन, इटर्नल रीजन. आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑन. सो जस्ट टू कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ इट मोरालिटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ दिस वर्ड्स इन द डेफिनेशन. इसलिए आप जो भी डेफिनेशन लिखो शुड बी बेस्ड ऑन वेरी सॉलिड ग्राउंड, कोर टर्मिनोलॉजीज यू शुड बी यूजिंग वैल्यू लोडेड टर्मिनोलॉजीज in your classes. So morality is standard of right and wise conduct whose authority in practical thought is determined by reason rather than custom. So this standard definition you should remember. Now, so morality thus stems from an individual's conscience. और conscience क्या होता है? तो conscience is, I told you, okay, आप हमारा जो ब्रेन या पर्सनैलिटी है हमारी, उसमें बुद्धि आती है. तो बुद्धि जो आपको नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पजल सॉल्व करने के लिए बुद्धि लगती है. ओके, और उस बुद्धि से हमें आता है ज्ञान किसी चीज का, नॉलेज. सो विजडम एंड नॉलेज. तो विजडम आपका फिजिक्स के एग्जांपल सॉल्व करना भी है. विजडम आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इट्स 200, ये जानने भी विजडम आता है. लेकिन वो विजडम, वो रीजनिंग जो आपको मोरल डिसीजन मेकिंग में काम आता है, हेल्प करता है, जिसको बोला जाता है मोरल रीजनिंग, मोरल विजडम. और उसी मोरल विजडम अगर आपके अंदर डेवलप है फुल्ली तो उसको बोला जाता है कॉन्शियंस. सो कॉन्शियंस इज अ मोरल विजडम, नॉट जस्ट विजडम, मोरल विजडम. सो नॉट जस्ट बुद्धि बट सत विवेक बुद्धि. आपके पास वो विवेक बुद्धि है ये जानने की क्या सही क्या गलत, तो वो उसको बोला जाता है कॉन्शियंस. और आप कोई भी एक्शन ओके उस डेवलप कॉन्शियंस से करते हो, देन दैट ओनली it will be considered as morality. Okay, so I hope you understood this basic definition of ethics and moralities. So going ahead then, so basic comparison between ethics and morality is
that ethics refers to rules provided by an external source, that is code of conduct in workplace, principle in religions, etc., while morality refers to individuals' own principles regarding right and wrong, individuals' own principle or conscience regarding right and wrong. That is basic ethics and morality. So now we'll discuss, guys, the comparison between ethics and morality. This is little bit heavy concept or high level concept, a bit difficult, but I will try to make it easy for you. तो बेसिक आपको इथिक्स के डेफिनेशन, मोरालिटी के डेफिनेशन हमने देख लिए, बहुत सारा कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी बताया आपको. नाउ वी विल ट्राई टू टैबुलेट दैट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्निकली इन मोर डिटेल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरालिटी? So morality or morals are the beliefs of the individual or a group as to what is right and wrong. कि as an individual or as a group, एक छोटा सा, उसकी खुद की जो मोरालिटी है, खुद के जो बिलीफ्स है, वो बन जाता है मोरालिटी. खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिकम्स द मोरालिटी. लेकिन इथिक्स में, इथिक्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स which help the individual or group to decide what is good or what is bad. So ethics are guiding principles that tells us what is right and wrong. Morals are not guiding principle. Morals are your own beliefs. Morals are your own beliefs. Ethics are the guiding principle, outside principle that guide us. कि सिग्नल मत ब्रेक करो, फाइन लगा देंगे. Signal breaking is a bad thing. Okay, don't eat non-veg because not allowed in religion. You follow those guiding principle, then it is ethics. Then, while now ethics and morality both tells us right and wrong. सिर्फ अथॉरिटी उसकी कहां से है? इंटरनल रीजनिंग से आपको समझ में आ रहा है राइट एंड रॉन्ग, मोरालिटी. आउटसाइड गाइडिंग प्रिंसिपल टेलिंग यू राइट एंड रॉन्ग, दैट इज इथिक्स. सो व्हाइल मोरल्स आल्सो प्रिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स, मोरालिटी भी आपको बताती है सही क्या गलत क्या. मोरालिटी इज अल्टीमेटली पर्सनल कंपास, दैट इज योर ओन कंपास. आपके अंदर एक मोरल कंपास है जो आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है क्या सही क्या गलत, क्या करो ना करो, एंड यू फॉलो, ओबे दैट मोरल कंपास. दैट इज व्हाट योर बेसिक मोरालिटी. व्हाइल योर इथिक्स आर रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शंस और पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चर. तो ये जो इथिक्स है गाइज, इथिक्स आर द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शन. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन ऐसे समझो. सी मोरालिटी तो आपके अंदर की आवाज है, आपने कुछ चीजें पढ़ी, सुनी, जानी, और आपको धीरे धीरे, बच्चे थे, आपने कुछ गलत किया, माँ बाप ने बताया, ओके, एज के साथ आप किताबें पढ़ने लगे, दुनिया समझने लगे, और आपका मोरल कंपास डेवलप होते गया. यू डेवलप द मोरालिटी. बट गाइज, आपको ये जो चीजें है किसी ने सिखाई, आउटसाइड एजेंट्स टॉट यू, रिलीजन, फैमिली एटसेट्रा, और उन्होंने जो इथिक्स आपको सिखाया वही आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मोरालिटी बन गई, आपके बिलीफ बन गए. लेकिन फिर ये चीज क्या सही क्या गलत, ये रिलीजन ने कैसे डिसाइड किया? कास्ट, कम्युनिटी, फैमिली, हमारे एल्डर्स ने कैसे डिसाइड किया? सो दे डिसाइडेड दिस इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शंस. मतलब क्या कि कोई सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, हजारों सालों से हमारे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, कल्चर्स इवॉल्व हो रहे हैं, वी आर इवॉल्विंग एज अ सिविलाइजेशन, अलग अलग रिलीजन्स इवॉल्व हो रहे हैं. तो ये जब इवोल्यूशन हमारा हो रहा था सोसाइटल लेवल पे, वी फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम फेस करके फिर हमने ओवर टाइम हमें ये समझ में आया कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्शंस आर गुड एंड विच ह्यूमन एक्शंस आर बैड. कि पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री इज बैड, ओके, अडल्ट्री इज बैड. ये जो सारी चीजें हमने ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन दैट वी फेस्ड एज अ सोसाइटी, कल्चर, हमने जो अलग अलग चैलेंजेस फेस किए, वो चैलेंजेस सिचुएशन को डील करते करते, ओके, सोसाइटी इवॉल्व इटसेल्फ एंड केम अप विद दोस प्रिंसिपल. तो ओवर टाइम सोसाइटी को समझ में आया कि ऐसे ही कोई चीज करते तो अच्छे से होगी, ऐसी ऐसी चीजें करना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा है सोसाइटी के लिए, एंड दे कैटेगराइज दोस थिंग्स इन इथिकल, अनइथिकल, एंड ओके, टॉट अस टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन. फिर वो जनरेशन ने वो चीजें सीखी, उनकी मोरालिटी बनी, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया, ओके, एंड इट केम ऑन ट्रांसफरिंग. So ethics also tells us do's and don'ts, right and wrong, but ethics are rules of conduct recognized in respect to particular class of human action or particular group or culture. So in response to particular group or culture, or in response to class of human actions, you develop these norms which
ended up becoming ethics. So ethics was in response to particular situations that society faced. Okay, it developed its own ethics, religion developed its own ethics. Okay, so for example, अब ये नॉनवेज खाना, सी हिंदुइज्म वॉज बॉर्न एंड ग्रोन इन इंडिया, जहां पे देर वॉज लॉट ऑफ वेजिटेरियन फूड अवेलेबल, ट्रॉपिकल कंट्री है, ओके, बहुत सारा रेनफॉल, मॉनसून एंड वेजिटेरियन फूड अवेलेबल. तो हिंदुइज्म में नॉनवेज मत खाओ, वेजिटेरियन बनो, आइडिया कैन बी एडवोकेटेड बिकॉज देर वॉज अ फूड अवेलेबल. लेकिन मिडल ईस्ट या यूरोप में, ओके, अगर वेजिटेरियनिज्म अगर प्रीच किया जाता इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, then it would not have been able to spread because people would not have survived because there is no vegetarian food available. Okay, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले की सोचो. ओके, आज तो इंडिया से बहुत फूड सप्लाई जाता है, अमेरिका, यूरोप. इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, जो हम डेली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, इन लैक्स ऑफ टन्स टू मिडल ईस्ट, यूरोप. अब वहां पे सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड, तो वहां के लोग कैन बी वेगन, और इसलिए अभी वो वेगन मूवमेंट्स चल रही है वहां पे. लेकिन ओके, 1000-2000 साल पहले इट वॉजंट पॉसिबल, ओके, फॉर दोज पीपल देयर टू प्रीच वेजिटेरियनिज्म. तो इसलिए वेजिटेरियनिज्म होना सही गलत या नॉन वेजिटेरियन सही गलत, इस पे वहां पे रिलीजन्स में वहां के कोई भी डिबेट नहीं की गई. एंड दैट्स व्हाई, सो वहां पे जो इथिक्स डेवलप हुआ वॉज इन रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शंस, ग्रुप्स, कल्चर्स. उन्होंने जो जो चीजें फेस की, सिचुएशन फेस की, दे डेवलप देयर ओन प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स. देन वेयर डू मोरालिटी कम फ्रॉम? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मोरालिटी कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंटरनल कॉन्शियस. वेयर डू द ethics come from? Ethics come from social system, that is external component, external rules. Then next guys, ethics और morality में flexibility. अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, थोड़ा डिफिकल्ट या टेढ़ा बनता जाएगा. नाउ इन मोरालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मोरालिटी इज यूजुअली कंसिस्टेंट, दो कैन चेंज इफ एन इंडिविजुअल्स बिलीफ चेंज. अब ये पॉइंट क्या है, यहां पे क्या बोला जा रहा है? मोरालिटी इज कंसिस्टेंट. अब सी, आपने कोई मोरालिटी पे प्रिंसिपल डेवलप किया, पंक्चुअलिटी. अब फॉर एग्जांपल मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, तो आई स्टार्ट बाय ऑल माय ऑफलाइन क्लासेस, जहां पे भी दिल्ली वगैरह में पढ़ाता हूं, केएसजी, खान स्टडी ग्रुप एटसेट्रा. माय रूल फर्स्ट डे में सारे स्टूडेंट को बताता हूं, एवरी डे माय क्लास विल स्टार्ट ऑन द सेम टाइम, जो भी आपको दिया है, 8 AM तो 8 AM, 8 PM 8 PM एट सेम टाइम. 5-10 मिनट में भी क्लास लेट नहीं होगा. आई ऑलवेज स्टार्ट माई क्लासेस ऑन टाइम. पंक्चुअलिटी आई वैल्यू एज एन इथिक्स टीचर. ओके, आई वैल्यू पंक्चुअलिटी एज अ गुड मोरल वैल्यू. अब अगर मैं पंक्चुअलिटी एज अ गुड मोरल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझ में वो इनर कॉन्शियस डेवलप हुआ है दैट पंक्चुअलिटी इज गुड मोरल लॉ. मोरल कंपास मुझे बता रहा है वो पंक्चुअलिटी इज वे गुड मोरल लॉ एंड यू शुड बी एक्टिंग ऑन इट, और वो करना ही है. तो ऑटोमेटिकली गाइस, कोई भी चीज करने से पहले आई विल नॉट लाइक टू बी लेट. वो इंटरनली मुझे बहुत परेशान करते ये चीज फिर, या मुझ पे प्रेशर डालेगी कि गो ऑन टाइम, यू आर लेट, गेट अप क्विकली, ऑर्गेनाइज योर वर्क फास्ट. एक आध दिन मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, लेट आई वोक अप, मुझे क्लास 8 बजे स्टार्ट करना है, आई माइट गेट लेट. ओके, देन आई माइट स्किप द ब्रेकफास्ट. लेकिन नहीं, क्लास अगर टाइम पे स्टार्ट करना, ये अगर सही मोरल वैल्यू है, देन आई शुड स्टार्ट इट. फिर भले आज विदाउट ब्रेकफास्ट भी क्लास लेना पड़े, देन आई शुड टेक. ये मोरल प्रेशर या एक एनर्जी होती है आपके अंदर, ओके, मोरल फोर्स होता है जो आपको पुश करता है टू परफॉर्म दैट एक्शन, टू डू दैट एक्शन. एंड दैट्स व्हाई फिर मोरालिटी में आप इनकंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं कर सकते. वो आपको एक फोर्स से पुश करता है वो एक्शन करने के लिए, क्योंकि वो चीज आपने खुद को दी है. वो मोरल लॉ सही आपने खुद को समझा के आप खुद का कॉन्शियस डेवलप किया है. एंड दैट्स व्हाई वो कॉन्शियस, ओके, टेल्स यू टू एक्ट ऑन दैट प्रिंसिपल. दैट्स व्हाई मोरालिटी इज यूजुअली कंसिस्टेंट. बट मोरालिटी भी चेंज हो सकती है. ओके, वाल्या का वाल्मीकि हुआ, या अंगुलीमाल की स्टोरी है. एक्सट्रीम इमोरलिटी से आदमी मोरालिटी की तरफ भी जा सकता है. तो मोरालिटी कैन डेवलप चेंज, बट लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए लगता है मोरालिटी को चेंज होने के लिए या डेवलप होने के लिए भी. बट एक बार डेवलप हो जाए, इट इज यूजुअली कंसिस्टेंट. लेकिन इथिक्स गाइज, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. इथिक्स आर नॉट कंसिस्टेंट. ओके, इथिक्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डेफिनेशन.
and that's why they tend to be consistent within certain context. Okay, consistent within certain context मतलब क्या? See, ethics का source क्या है? External. Why we follow ethics? Because society sees it. Outside agent tells you, external source tells you सही गलत. तो फिर external source, religion is telling you कि don't eat non-veg, non-veg eating is bad. और कल आपने रिलीजन बदल दिया तो एक्सटर्नल सोर्स का रूल ही बदल गया. सो इन इथिक्स गाइज, इथिक्स आर डिक्टेटेड बाय एक्सटर्नल रिलीजन, नेशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर. इफ यू चेंज रिलीजन, चेंज कल्चर, चेंज सोसाइटी, कल आपने देश ही बदल दिया, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, उनके नए इथिकल लॉज, उनके नए अपने मोरल लॉज. सो इफ यू योर इथिक्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स फॉर अ डेफिनेशन. सो आपने एक्सटर्नल सोर्स ही बदल दिया, कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया, देन इथिक्स इज चेंज. सो इथिक्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है. यू कैन स्विच, ओके, दैट चेंज द रिलीजन, चेंज द सोसाइटी, चेंज द कल्चर, एंड you don't have to then anymore follow any ethical law or ethical rule of first religion, society, culture. You now can follow the ethics and laws of other society, culture, religion. Okay, या फिर आप कोई भी रिलीजन, सारे रिलीजन छोड़ दो, एथिस्ट बन जाओ. ओके, देन फिर कोई रूल ही नहीं है एक्सटर्नल कि आप कुछ करो कुछ ना करो सही गलत का. उस केस में फिर आपका एक ही रूल है, मोरालिटी. अगर आपने खुद में वो मोरालिटी डेवलप की है, क्योंकि मोरालिटी आप कितने भी रिलीजन बदलो, कल्चर, कास्ट, नेशंस बदलो, मोरालिटी आपके अंदर की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज, वो आपके साथ हमेशा चलेगी. सो दैट्स व्हाई मोरालिटी इज कंसिस्टेंट व्हाइल इथिक्स इज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर डेफिनेशन. यू चेंज द कंटेक्स्ट. Okay, ethics definition changed, and that's why ethics is more by an external source. So it is more flexible. Ethics, morality comes from internal source, and that's why it is consistent. There is less flexibility. Then next concept है applicability in business. क्या business में कितना applicable है? So guys, morality is not applicable in business world, while ethics, yes, ethics is applicable. अब इसका कहना क्या है गाइस? सी, मोरालिटी आपके अंतरात्मा की आवाज है, भले वो आवाज कितनी भी सही हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वहां पे आपको क्या सही गलत लगता है, डजंट मैटर. ओके, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, उस प्रोफेशनल सेटिंग में काम करना है, देन यू नीड टू फॉलो देयर ओन इथिक्स. तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी मोरालिटी है दैट नॉनवेज ईटिंग इज बैड, वन शुड नेवर ईट अ नॉनवेज, सही है, वन शुड रिस्पेक्ट एनिमल्स, सही है. बट यू आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें देर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड्स और नेशंस फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, जिनके लिए नॉनवेज ईटिंग विल नॉट बी द टैबू और नॉनवेज ईटिंग वोंट बी एनी इथिकल लॉ. तो फिर कंपनी अगर नॉनवेज अलाउ कर रही है अपने कैंटीन्स एटसेट्रा में, then you shouldn't be, okay, discussing this issue. And that's why guys, your morality has no role in the business setting. वहां पे उनका लॉ अप्लाई होगा, उस कंपनी का लॉ अप्लाई होगा, and you need to follow that laws. So morality has no applicability in business setting. What is applicable is ethics of an organization. So अगर टाटा में काम कर रहे हो, then you need to follow Tata's code of conduct rules. अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, देन यू नीड टू फॉलो सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल. ओके, सो अब और एक एग्जांपल मोरालिटी और इथिक्स के एप्लीकेबिलिटी का. सी, आप लिबरल पर्सन हो, यू फॉलो जॉन लॉक, यू एक्सट्रीमली बिलीव इन लिबरलिज्म, you like the fundamental rights given in constitution. I have my freedom of speech and expression, I have right to life and liberty. So I have freedom that I can wear the clothes the way I want, I can wear any clothes I want. Fine, I want to wear t-shirt, jeans, whatever I want. But if you are working in an organization, तो वहां जाके नहीं बोल सकते कि मैं ऑफिस में टी शर्ट में आऊंगा, I have right or liberty to do so. No, if you are working in organization, भले आपका लिबरलिज्म सही है, फ्रीडम इज अ गुड वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन भी फंडामेंटल राइट में लिबर्टी की बात करता है, लेकिन भले सारी चीजें सही हो, बट इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन और उनका रूल है दैट इन आवर ऑफिसेस एवरीवन शुड बी इन कैजुअल, no one should be in casuals, everyone should follow the formal dress code, okay, and this is our dress code, then you ought to follow that dress code of that organization.
तो इसलिए आपकी मोरालिटी कितनी भी सही भी हो, इट हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन बिजनेस। बिजनेस वर्ल्ड में क्या एप्लीकेबल होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का इथिक्स। ओके, सो यू माइट लाइक टू हैव लॉन्ग बियर्ड, बट गाइज इफ यू आर गेट सिलेक्टेड इन आईपीएस, देन आईपीएस का रूल है यू कांट मेंटेन द थिक बियर्ड, आपको फिर वो शेविंग करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर बाउंड टू फॉलो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस प्रोफेशन के सारे कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स, एंड दैट्स व्हाई मोरालिटी हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन बिजनेस। ओके, इथिक्स इज फुल्ली एप्लीकेबल। हर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, कल्चर का अपना अपना इथिक्स होता है, एंड यू नीड टू फॉलो दैट। ओके, बिजनेस का। देन फ्रीडम टू थिंक एंड चूज। नाउ गाइज, इथिक्स में देयर इज नो फ्रीडम टू थिंक एंड चूज, okay, while morality में there is a freedom to think and choose. Now what I mean by that, see, morality is your inner conscience की आवाज. So I told you it is a moral compass. वो एक moral energy आपके अंदर that will push you कि punctuality is good value, do it. जो गांधी ने सत्याग्रह में कहा था, सत्य आग्रह, ट्रूथ फोर्स, तो मोरालिटी में एक ट्रूथ फोर्स होता है, सत्य आग्रह, दैट ट्रूथ फोर्स, दैट मोरल कंपास pushes you to do something, and that's why okay, आपको कोई ज्यादा चॉइस नहीं रहता, फ्रीडम टू थिंक एंड चूज। वंस यू हैव दैट मोरल प्रिंसिपल, देन यू विल एक्ट ऑन दैट मोरल प्रिंसिपल, एंड दैट्स व्हाई फ्रीडम टू थिंक एंड चूज इज नॉट देयर। अब ये समझो कि गांधी महावीरा को ये कन्विंस करना है दैट नॉन वायलेंस इज ओके और ईटिंग नॉनवेज इज गुड थिंग, इम्पॉसिबल। सो बिकॉज इट इज देयर कॉन्शियंस इज फुल्ली डेवलप्ड, एंड इवन इफ दे वांट, देयर कॉन्शियंस विल नॉट अलाउ देम टू डू सो। Okay, their conscience is very strongly will create that truth force, moral force inside them, and that will prevent them from eating non-veg or anything at all. So इसलिए freedom to think and choose is not there in morality, but ethics में I told you, ethics depend on others for definition. You can switch that other group context. You switch the context, and your ethics can be, you can change the ethics principle. And so freedom to think and choose is tremendously available in ethics, but it is not available in morality. So this is just a basic comparison between these two values that I wanted to give you. Okay, so I hope you enjoyed this lecture and understood basic concept of ethics and morality. If you have any questions or feedbacks, do write them down in the comment section, then I will reply you there. So thanks for listening, guys. Now इफ यू वांट, अभी का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए आपको, यू कैन यूज दोस क्वेश्चंस, ट्राई टू राइट आंसर टू दोस क्वेश्चंस। मेरा जो क्लासेस स्टार्ट होगी दार्शनिक आईएएस के ऐप पे, देयर आई विल आफ्टर एवरी टॉपिक आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस, आई विल टेल देयर आंसर्स, आई विल डिक्टेट देयर आंसर्स, सो देन आई विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। बट अभी प्रैक्टिस के लिए यू कैन ट्राई फ्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, कैन इथिक्स एग्जिस्ट विदाउट मोरालिटी और वाइस वर्सा? कैन इथिक्स एग्जिस्ट विदाउट मोरालिटी, और कैन मोरालिटी एग्जिस्ट विदाउट इथिक्स? अब सी, मैंने तो आपको इथिक्स का कंसेप्ट सिखाया, मोरालिटी का कंसेप्ट सिखाया, दोनों का कंपैरिजन भी सिखाया। अब ये सारे नॉलेज को कैसे आप अप्लाई करते हो क्वेश्चन में, कैसे रीजन करके आंसर लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे का। सो थर्ड में आई जनरली से कि 33% ही कोचिंग है, 33% इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, जो पढ़ाया कोचिंग में आपने कितना इम्बाइब किया, कितना समझे, एंड देन 33% इज राइटिंग। तो मैं यहाँ पे बहुत आंसर राइटिंग करवाऊंगा आपको, अच्छे से उसके आंसर कैसे फ्रेम करना या लिखना। तो अभी आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, या हाउ डू इथिकल प्रिंसिपल गाइड मोरल डिसीजन मेकिंग, हाउ डू इथिकल डायलेमा चैलेंज आवर मोरल बिलीव्स एंड वैल्यूज, देन कैन इथिकल प्रिंसिपल बी अप्लाइड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट मोरल पर्सपेक्टिव्स, एंड कैन मोरल जजमेंट बी जस्टिफाइड थ्रू रीजन एंड लॉजिक अलोन और आवर इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड। तो आगे के जो 3-4 क्वेश्चन है आर बिट कॉम्प्लेक्स, सो आई विल डिस्कस देम इन क्लासरूम, लेकिन आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कैन इथिक्स एग्जिस्ट विदाउट मोरालिटी और वाइस वर्सा? ओके, सो यस, इथिक्स कैन एग्जिस्ट विदाउट मोरालिटी एंड मोरालिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट इथिक्स, बट दोनों रीइंफोर्सिंग होते हैं, बोथ ओके डेवलप ईच अदर, बोथ सपोर्ट ईच अदर। सो यस, इथिक्स एंड मोरालिटी में गैप आता है, सोसाइटी का जो इथिक्स होता है वही हमारी मोरालिटी बनती है, या फिर किसी और सोसाइटी ने वो इथिक्स कहां से डिसाइड किया, क्योंकि उस टाइम कुछ लोगों ने सोसाइटी को कुछ चीजें बताई, लाइक महावीरा, बुद्धा, कृष्णा, रामा, इन्होंने कुछ चीजें सिखाई सोसाइटी को, और वही उनकी मोरालिटी जो थी वो सोसाइटी का इथिक्स बन गया, और वही इथिक्स देन
गेट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, वो जनरेशन खुद सीखती है तो मोरालिटी बनता है, ओके, एंड दे ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशंस, ओके। और बहुत बार लाइक सती प्रैक्टिस चल रही थी, राजा राम मोहन राय का खुद का एक मोरल प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया था, बहुत सारा एजुकेशन लेके उन्होंने खुद का रीजनिंग डेवलप किया, एंड यूजिंग दैट रीजनिंग राजा राम मोहन राय with his morality and with the force of morality, he changed the principles of society and created, okay, new ethical society where sati practice was abolished, where widow remarriages are allowed. और उस आदमी की, राजा राम मोहन राय की मोरालिटी, ओके, इतने सालों बाद जाके बन गया सोसाइटी का इथिक्स। सो यस, बोथ आर इंडिपेंडेंट बट रीइंफोर्स ईच अदर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। सो ट्राई दैट क्वेश्चन आंसर राइटिंग गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑफ दार्शनिक IAS by Kadam sir, and to download this notes, PDF, etc., you can join me on Telegram, UPSC Ethics 4. There I will discuss with you or share all these PDFs and data, content, notes, etc. All information you will get. So join me there on Telegram, or you can just search on Telegram Darshanik IAS by Kadam sir. You will get the link, and download my app, okay, and soon on my lap I will be launching this courses of ethics, so Darshanik IAS app. So thanks for listening guys.